स्टार्ट। I want my photograph taken, I said. The narrator of the story said that I want my photograph taken. मुझे मेरी फोटोग्राफ मतलब क्लिक करवानी है, तो उसने ये बात फोटोग्राफर से कही है. The photographer looked at me without enthusiasm. द फोटोग्राफर, जो फोटोग्राफर है, उसने मेरी तरफ यानी नरेटर की तरफ बिना उत्साह के साथ यानी अनएंथुजियास्टिकली देखा. He was a drooping man in a grey suit with the dim eye of a natural scientist. He was a drooping man. He is a kind of man who is bent um, in a grey suit. He is in a grey suit with the dim eye of the natural scientist. He is an expert and thoughtful person in photography. But there is no need to describe him. And our narrator said that there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. सबको पता है कि कैसा होता है फोटोग्राफर. Sit कैसा हो? there, he एक said. मिनट, एक मिनट सिंधुजा, कैसा होता है फोटोग्राफर? सबसे पहले तो ही वॉज अ ड्रूपिंग मैन इन अ ग्रे सूट विद द डिम आई ऑफ अ नेचुरल साइंटिस्ट. व्हाट डज दिस लाइन मीन? In your words, what does this line mean? He was a drooping man, dim eye of natural scientist. What's? Explain what you understood about his personality. What's his personality? Ma'am, his personality is like that. He is bent uh, with his back. So the word drooping is used. And he is in a grey suit with the dim eye of a natural scientist. He was a natural scientist and is thoughtful of the fashion designing and the photographer expert. So that's why this is used. I have given you an option that he is a melancholic person. Melancholic means sad, dull person, or very jolly, joyous, robust person. What type of personality he has? Ma'am, sad person. Sad The person. option A is correct. Because of drooping. Drooping is a negative word which is showing that his back is not straight. His back is bending down. Second, gray. Gray color is a negative word. Gray is showing the seriousness. Okay. In reality, suit is gray. But when the gray word is used in English literature, it is showing that such a character is serious character. Then there is dim eye. Dim eye is used. Dim matlab he is very minute about his work. He is very observant about his work. He is not using common sense. He is not using joy, enthusiasm. No, he is very perfectionist. This is a good quality, but being too much involved in your work makes you a dim person, dull person, rough person in the eye of other persons. Okay. Now, last line, everyone knows what a photographer is like. What does this line mean? Ma'am, we used to know about the photographer that photographer used to make us sit in front of the camera and used to click our photos with different poses and by twisting our head and give us some instructions that how he clicks the photo and we have to sit like that. But there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. Anybody else who can describe this line? First, okay, Meher, describe this. Everyone knows what a photographer is like. मैम वो रीडर से कम्युनिकेट करते हुए यह लाइन लिखता है कि एवरीवन नोज व्हाट ए फोटोग्राफर इज लाइक. तो मैम वो जो इसने ऊपर उसकी बताई मैम उसकी स्पेसिफिकेशन बता दी कि उसे उसमें क्या अलग लगा और फोटोग्राफर से. तो हमें सही पता चलता है कि उसने बहुत जगह और भी गया है जिसके लिए उसे ये लगा कि और फोटोग्राफर तो वैसे ही थे लेकिन इसमें उसे थोड़ी सी अलग लगा. अच्छा, तो एग्जैक्टली मेहर फोटोग्राफर कैसा होता है? ओके,
एग्जैक्टली डॉक्टर कैसा होता है, डॉक्टर के बारे में बताओ। कोई भी मैम बता दो। अधिकतर हम्म। मैम अधिकतर जो होते हैं मैम वो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा वो मैम सीरियस होते हैं। और मैम वो ज्यादा फालतू की बात नहीं करते हैं और बस वो पेशेंट को चेक करते हैं, बताते हैं कि कैसा है और बस। करेक्ट। तो दिस इज द इमेज इन योर आई ऑफ अ डॉक्टर। यू कैंट सी अ फोटोग्राफर, सो नो इमेज इन योर आई। ठीक है। डॉक्टर की इमेज यही होती है, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दे आर रेडी टू स्कोल्ड यू। इफ यू सेड आई एम, जैसे कि आई एम ड्रिंकिंग टी, ओ यू ड्रिंक टी, यू डोंट वांट टू लिव मोर, sarcastic, taunting, scolding behavior। और तुमने बोला कम बोलते हैं, या कम बोलते हैं वो, और अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड होते हैं। दैट्स द पर्सनैलिटी ऑफ अ डॉक्टर। या डॉक्टर के जाओगे तो, मैं भी जाऊंगी ना अभी, तो मैं भी यही इमेज लेकर जाऊंगी कि डॉक्टर से मिलना, तो भाई वो ऐसे ऐसे करके हमको चार सुनाने वाला है, ऐसे। ठीक है। फोटोग्राफर, एवरीबडी नोज। अब हम आज के जमाने में हम नहीं जानते, लेकिन ये स्टेफन निकॉक, हाँ, उन लोगों से बात कर रहे हैं जो सेंचुरी के थे, कि हर कोई जानता है एक फोटोग्राफर कैसा होता है। तो एक फोटोग्राफर जो होता है, वो अपने प्रोडक्ट, मतलब अपना जो जिस भी व्यक्ति का उसको फोटो लेना है, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा पजेसिव होता है। वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है। जैसे मैं डॉक्टर का दिखाया ना, इसमें भी डेडिकेशन होता है। वो अपने वर्क में थोड़ा सा भी फ्लॉज, फॉल्ट्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तुम किसी क्या कहेंगे, किसी फोटोग्राफर के पास जाओगे जो वो कैमरास यूज करता है, उस टाइप के बड़े वाले, तो उसको तुम देखोगे, वो तुम्हें पोज में लाकर खड़ा, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाओ, थोड़ा ऐसे हो जाओ, थोड़ा। तो वो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर लेना चाहेगा। ठीक है। तो हर कोई जानता है फोटोग्राफर कैसा होता है, इसमें ये मैं ठीक बता रहा था। और इसमें ये चीजें एक्स्ट्रा थी, ड्रूपिंग वाली, डिमाय वाली, ग्रे सूट वाली। मतलब फोटोग्राफर कैसा होता है, बहुत ही तुम लोग जाओगे ना, बहुत ही झगड़ा करने वाला होता है। झगड़ा करने वाला होता है, ये आपको कुछ समझता ही नहीं है, ऐसा होता है। उसका अपना ही एक होता है, जैसे कि डायरेक्टर से मिलने जाओगे ना, तुम कौन, क्या आता है तुम्हें, मैं हूँ जो हूँ, ऐसा होता है। कंटिन्यू करो बेटा, कौन चल रहा था। मैम कैमरामैन और फोटोग्राफर में क्या डिफरेंस है? कैमरामैन तो बेटा फिल्मों में काम में आता है, फोटोग्राफर एक फोटो दे देता है निकाल कर, है ना। तो वो कौन कौन बच्चा बता रहा था, किसका चल रहा था। हाँ सिंधुजा, Sit कंटिन्यू। there and wait. The photographer said कि बैठ जाओ और वेट करो. हाँ। Narrator waited an hour. जो नरेटर है उसने 1 घंटे वेट किया. हम्म। इतने टाइम में उसने लेडीज कंपेनियन फॉर 1912, द गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड द इन्फेंट्स जनरल फॉर 1888. इतने टाइम में उसने लेडीज कंपेनियन, ये 3 मैगजीन्स उसने पढ़ी. I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine. नरेटर कह रहे हैं कि उन्होंने जो जब 1 घंटा हो गया, तो उन्होंने फोटोग्राफर के प्राइवेट स्पेस में, उनके साइंटिफिक परसूट्स में उन्होंने मतलब ही इंक्लूडेड इन दैट. तो उनको उनका कहना है कि वो उन्होंने एक अनवारंटेबल थिंग करी है. तो in including the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine, and with a face like mine because he had compared his faces with those professional magazine faces, and he knows all his faces faults and shortcomings. That's why he's saying that with a face like mine. या ही इज फीलिंग डिस्गस्टेड, ही इज फीलिंग डिफरेंट, या ही इज फीलिंग हैप्पी। Ma'am, he is feeling disgusted. ओके, नेक्स्ट देवांश, यू स्टार्ट। मैम मैम हम्म। मैम ये लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. आई बिगेन टू सी दैट. ओके, इसने वैसे अच्छे से बताया था बच्चे ने। आई बिगेन टू सी that I had done an
unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine? मान लीजिए कहीं पर परफॉर्मेंस चल रहा है रामायण इन योर स्कूल, रामायण का परफॉर्मेंस चल रहा है और उस रामायण के परफॉर्मेंस में जो रावण का कैरेक्टर है, वो जो पर्सन निभा रहा है उस कॉस्ट्यूम में है और वो कॉस्ट्यूम पहने हुआ है रावण का, वो कॉस्ट्यूम पहने पहने उसको कुछ याद आया और वो क्लास में आ गया। अब उसने क्या किया, क्लास की जो एक पीसफुल एटमॉस्फियर था या जो एजुकेशनल एटमॉस्फियर था उसको उसने ब्रेक इन कर दिया। सब बच्चे हंसने लगेंगे देखकर, ये कहाँ से आ गया। तो ऐसे फेस के साथ उसको क्लास में नहीं आना चाहिए था। क्लास की जो सैंक्टिटी थी, जो एक शांत माहौल था, उसने उस माहौल को आकर भंग कर दिया। जो रावण के कॉस्ट्यूम में आ गया बच्चा उसमें। ठीक वैसे ही ये कह रहा है कि जो फोटोग्राफर का होल जो स्टूडियो है, वो पूरा स्टूडियो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर अच्छे फेस वाले लोग ही आते हैं। और अच्छे फेस वाले लोग कैसे, उसने मैगजीन्स देखी, उन मैगजीन्स में जो फोटोग्राफ्स थे वो इसी के द्वारा थे, नीचे नेम लिखा होता है ना। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा फेस लेकर आया था जो यहाँ पूरी तरीके से अनवारंटेबल था, अनजस्टिफिकेबल था, अनजस्टिफाइड था, अनसूटेबल था। मेरे जैसे फेस ने इसके स्टूडियो की सैंक्टिटी को ब्रेक इन कर दिया। इसकी स्टूडियो की सैंक्टिटी किससे बनी है, इस मैन की साइंटिफिक परसुएट से। ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है अपनी ली हुई पिक्चर्स को, उनको और खूबसूरत बनाने का ट्राई करता है, वो पहले से भी खूबसूरत होती हैं। मुझ जैसे फेस के साथ ये करेगा क्या। मैंने इसकी प्राइवेट एरिया में गलती से एंट्री ले ली ऐसे फेस के साथ। अब मैं बोल नहीं रही, ऐसे ऐसे फेस के साथ अपने फेस को ये बहुत ऐसे लेकर चल रहा है कि बहुत ही अलग सा फेस है। अलग सा मतलब जो खूबसूरत फेस होते हैं वैसा नहीं है। ठीक है, तो अब देवांश तुम कंटिन्यू करो, जरा देखते हैं क्या आया तुम्हें। एक बार हम ध्यान बताते हैं कौन सी लाइन। आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर, यहाँ से। ठीक है। आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर। यहाँ पर वो ये कह रहा है स्टीफन लीकॉक कि जब मैं वहां पर 1 घंटे बैठ लिया, मुझे 1 घंटे इंतजार कराने के बाद फिर उसने अपना अंदर का दरवाजा खोला। कम इन, ही सेड सीवियरली। मुझे बुलाने के लिए अंदर। तो उसने मुझे बोला कि अंदर आ जाओ। और वो ऐसे बोल रहा था कि वो मेरे मुझे देखकर वो एक्साइटेड नहीं था। करेक्ट। सिट डाउन सेट द फोटोग्राफ। I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted skylight। फिर फोटोग्राफर ने बैठने को कहा और वहां पर एक ऊपर एक स्काईलाइट लगी हुई थी जिस पर जो ग्लास था जिसका वो ट्रांसलूट था। और वहां पर एक कर्टेन था जो कि उसके ऊपर टंगा हुआ था जिसमें से सनलाइट छन छन के आ रही थी। मैं वहां जाके बैठ गया। हम्म इसका तो कनेक्शन चला गया। पुरंजय तुम्हारी ही पड़ी हुई है नहीं, तुम बताओ। मैम क्या? पढ़ी हुई है ना तुम्हारी स्टोरी है। मैम नहीं। ओके। क्रॉप। और आ गया क्या देवांश, आराध्या तुम हाँ। बताओ। आ गया, बोलो बोलो बोलो, देवांश कंटिन्यू करो। crawled into it from behind। फिर वो फोटोग्राफर ने एक मशीन को कमरे के बीचों बीच लाया और फिर उसके अंदर हो गया पीछे से। He was only in it a second। यहाँ गलत That's हो enough देवांश। for one look at me। नो 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 और नो नो नो, यहाँ गलत हो।
The photographer rolled a machine into the middle of the room and crawled into it. Okay, ठीक है, ठीक है, continue. हाँ वो, लेकिन वो उस मशीन के जो अंदर गया था वहां पर केवल 1 सेकंड के लिए रुका। तो वो जितने टाइम में वो बस मुझे एक बार देख सके। एंड देन ही वॉज आउट अगेन टीयरिंग एट द कॉटन शीट एंड द विंडो पेन्स विद अ हुक्ड स्टिक। और फिर उसने बाहर आने के बाद जितने भी कर्टेन वगैरह टंगे हुए थे उन सबको साइड कर दिया, अपेरेंटली फ्रेंटिक फॉर लाइट एंड एयर। और इसको उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उसे लाइट और एयर की जरूरत है एक अच्छा फोटोग्राफ खींचने के लिए। देन ही वॉज crawled back then he crawled back into the machine again and drew a little black cloth over himself। फिर वो ये सब करने के बाद दोबारा से मशीन में गया और अब उसने अपने ऊपर एक छोटा सा काला कपड़ा रख लिया था, मतलब पहन लिया था। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर। लेकिन अब वो गया तो वहां पे कुछ देर रुका। मुझे आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल। मैं ये जान चुका था कि वो अंदर बैठ के प्रे कर रहा होगा कि मैं सीधा रहूं और सब कुछ जो है ठीक हो, और ताकि मैं इसका अच्छा फोटोग्राफ निकाल सकूं। और मैंने ऐसा करा भी, मैं बिल्कुल सीधा बैठा रहा। When the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head। और जब बाद में वो फोटोग्राफर बाहर निकला, वो काफी ग्रेव, मतलब काफी किसी सोच में सीरियस। लग रहा था। हाँ, या और ओके, फिर उसके बाद उसने अपना सरेंडर है। ओके, मैम एक बार ये वाली लाइन बता दीजिए। देन ही crawled back into the machine again and drew a little या black cloth over himself। या देन ही क्रॉल्ड बैक। क्रॉड का मतलब रेंगते हुए जाना। वो मशीन में फिर से उसने क्रॉड बैक किया। रेंगता कौन है? सांप। अगर आपको रेंगते हुए दिखा रहा है, मतलब वेरी स्लोली स्लोली आप यूं करके जेस्चर करते हुए नीचे झुक कर किसी की चीज के नीचे जा रहे हैं, तो उसको क्रॉड बोल दिया। मशीन के नीचे गया वो। आप मशीन इमेजिन कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इमेज भेज दूं आपके पास पुरानी फोटोग्राफी की। तो वो उसके नीचे गया एंड ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिम। और वो जो पहले फोटोग्राफ, उसके ऊपर ना एक कपड़ा बिछा रहता था काले रंग का, तो उस काले रंग के कपड़े को उसने अपने ऊपर, ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिम, अपने ऊपर लिया। क्यों? काले कपड़े से क्या होगा, जो भी सनलाइट आ रही है, जो भी आ रहा है, उसकी आंखों पर नहीं पड़ेगा, वो आंखों से सही इमेज देख पाएगा कि सामने जिसकी इमेज वो ले रहा है। इसलिए काला, देखोगे जो फिल्म वाले जो भी करते हैं वो भी काला कपड़ा यहाँ ओढ़ लेते हैं, ताकि सामने बिल्कुल क्लैरिटी आए जो भी पिक्चर वो लेने वाले हैं। ठीक है, तो उसने एक काला कपड़ा, उसकी कैमरे के ऊपर ही होता है, इतना ऊंचा सा कैमरा होता है, उसके ऊपर कपड़ा, वो जैसे उसने ऐसे हाथ, वो सर डाला आंखें देखने, आंखों से देखने के लिए, काला कपड़ा ऐसे करके ऊपर डाल लिया सर के ऊपर। और किसी को कोई लाइन इस पेज में? देखिए बहुत तसल्ली से करा रही हूँ मैं आपको, एक भी डाउट रहेगा नहीं कि स्टोरी में। हाँ भाई, अनुप्रभा, तुम स्टार्ट करो आगे। द फेस इज क्वाइट रॉन्ग। The face is quite wrong, he said. उसने कहा तुम्हारा फेस कुछ ठीक नहीं है, बेकार सा है। I know, I answered quietly. उसने कहा मैं अपने फेस के बारे में जानता हूँ, और उसने बहुत शांत होते हुए कहा, ये मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं था। I have always known it. मुझे हमेशा से ही पता है कि मेरा चेहरा ऐसे है। I sighed. He sighed. उसने बहुत गहरी सांस ली। I think, he said. मुझे लगता है, फोटोग्राफर ने कहा, द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। उसने कहा कि फेस जो है तुम्हारा अच्छा होता अगर वो 3/4 फुल होता। अगर तुम्हारा फेस जो है साइड और फ्रंट के बीच में से बीच में हो, उस एंगल में हो, तो तुम्हारा फेस अच्छा आएगा। आई एम श्योर इट वुड। हाँ ऐसा होगा, आई सेड एंथुसियास्टिकली। मैंने बहुत खुश होकर कहा। फॉर आई वॉज ग्लैड, क्योंकि मैं खुश था कि दैट द मैन हैड सच ए ह्यूमन साइड टू हिम, कि जो फोटोग्राफर है उसके फोटोग्राफर को नैरेटर के प्रति एक ह्यूमैनिटी है, कि उसे जो है नैरेटर का फेस एक अच्छा फेस खींचना है, इसलिए
उसको नैरेटर के प्रति ह्यूमैनिटी है, सो वुड योर्स। ऐसा तुम्हारा भी होगा। इन फैक्ट आई कंटिन्यू, मैंने बोलता रहा, हाउ मेनी फेसेस वन सीज दैट आर अपरेंटली हार्ड, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in. How many faces? कितने सारे चेहरे एक बार में कोई देख सकता है जो कि ऐसे दिखते हो, जो कि नैरो हो, हार्ड हो, और जो कि शॉर्ट हो। लेकिन जब तुम उन्हें 3/4 फुल उस एंगल में ला देते हो, वो वाइड हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, और वो अनलिमिटेड हो जाते हैं। आगे एक लाइन बताओ। But the photographer had ceased to listen. लेकिन फोटोग्राफर ने मेरी बात सुनना बंद कर दिया था। He came over and took my head in his hand and twisted it sideways. वो मेरे पास आया और उसने मेरा सर पकड़ा अपने हाथों में और उसको साइड में ट्विस्ट करने लगा। I thought he meant to kiss me. मुझे लगा कि वो मुझे किस करना चाहता है, और इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद करी। But I was wrong. लेकिन मैं गलत था। He twisted my face as far as it would go and then stood looking at me. उसने मेरा फेस इतना ज्यादा मोड़ा जितना वो कर सकता था, और फिर दूर जाके एंड देन स्टूड, और फिर वो खड़ा हो गया एक तरफ और मेरे फेस को देखने लगा, और फिर से उसने गहरी सांस ली। ओके, कोई डाउट है किसी को अब तक? मैम मैम आप सो वुड योर्स का क्या मतलब है? 3/4 फुल क्या होता है? क्या चीज? मैम आप 3/4 फुल का एग्जैक्ट मीनिंग बता ओके, सकते हैं? ठीक है। और दूसरा? और मैम कौन? सो मैम ये वुड हाउ योर्स का मेनी क्या मतलब है? फेसेस वाली बता एक मिनट, एक दीजिए। मिनट, एक मिनट बताते। महर, तुमने क्या पूछा? मैम ये सो वुड योर्स वाली लाइन का क्या मतलब है? समझी नहीं मैं अभी। सो वुड योर्स, ओके ठीक है। और तुम्हारा सिया? मैम ये वाली लाइन, हाउ मेनी फेसेस वन सीज वाली लाइन। ओके ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं इमेज देके समझाती हूँ। नाइन्थ 10th क्लास है तुम्हारा। जस्ट अ मिनट, इमेज और भेज दो उसकी। सी, देखिए, when getting a 3/4 headshot done, this is more like 3/4 body shot, ठीक है। This photograph is commonly from around the mid thigh to just above the head. मिड थाई से लेकर लगभग हेड तक का इमेज होता है। इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम अराउंड द काफ एरिया अप टू अबव द हेड,
जो नीचे इमेज भेजा है ये एकदम फ्रंट से नहीं लिया जाता इमेज। आपने बहुत देखा होगा, आप साइड से अगर लेंगे किसी का फोटो जो लेंगे ना, तो वो बहुत खूबसूरत निकल कर आता है, क्योंकि सारा जैसे लिप्स का है, इसका है, नोज का है, ये सब कुछ उभर कर आता है, चीक्स है। ठीक है, तो उसको 3/4 बोलेंगे। तो इसने बोला कि आपका फेस जैसा भी है ओके है, अगर हम 3/4 फुल लेंगे, फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। आपका सीधा सीधा फेस लेंगे तो इतना खूबसूरत नहीं आएगा, हम आपका बेटर निकलेगा अगर हम 3/4 फुल लेते हैं। फिर यहाँ पर इसने बोला, एक बच्चे ने पूछा यहाँ पर, आई एम श्योर इट वुड, उसने भी एंथुजियास्टिकली कहा कि हाँ, फॉर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू हिम, सो वुड योर्स। इन फैक्ट आई कंटिन्यूड, कहाँ गया, आई एम श्योर इट वुड, मैंने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा, सो वुड योर्स, आपके साथ भी, इनफैक्ट वास्तव में। फिर मैंने कहा हाउ मेनी फेसेस, ओके अभी सो वुड योर्स अभी लेते हैं दोबारा से। फिर मैंने पूछा उससे, फोटोग्राफर से, कि कितने फेसेस ऐसे हैं वन सीज दैट आर अपरेंटली हार्ड, अगर कोई व्यक्ति उन फेसेस को देखे तो वो देखकर कहेगा ये तो बहुत हार्ड फेस है, बहुत नैरो फेस है, बहुत लिमिटेड फेस है। तो अगर हम किसी फेस को हार्ड, नैरो और लिमिटेड कह रहे हैं, बट द मिनट, लेकिन जैसे ही हम उस हार्ड, नैरो, लिमिटेड फेस को, जिस मिनट हम उसको 3/4 में रखते हैं, तो वो वाइड नजर आते हैं, लार्ज नजर आते हैं और बाउंडलेस नजर आते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लीकॉक। लीकॉक का क्वेश्चन है ये फोटोग्राफर से कि आपकी बात सही है कि मेरा फेस 3/4 फुल में बहुत खूबसूरत नजर आएगा या नॉर्मल सा नजर आएगा जो आपको अभी नहीं लग रहा है, तो आप ये बताओ कितने फेसेस ऐसे हैं जो हार्ड हो, नैरो हो और लिमिटेड हो, और जैसे ही आप उनको 3/4 में डालो वो वाइड, लार्ज और बाउंडलेस नजर आने लग जाए। ठीक है, मैं तुम्हें आंसर मिल गया सिया, दोनों का आंसर हो गया, 3/4 यस वाला मैम। आंसर क्लियर, 3/4 वाला क्लियर ना। अब क्लैरिटी है 3/4 जिसने पूछा था, यस और नो। यस हाँ मैम। okay. बिल्कुल, जो यस या नो एकदम क्लैरिटी के साथ बताना, नहीं हो तो फिर ट्राई करेंगे बताने का, है ना, आना चाहिए। अच्छा, इसका सो वुड इसको कनेक्ट करें। ही शायद, आई थिंक ही सेड कि आपका जो फेस है 3/4 में, वुड बी इन्होंने लिया है यहाँ पर, वुड बी, आपका फेस 3/4 फुल में होगा। आई एम श्योर इट वुड, मैंने भी कहा हाँ होगा, और मैं ग्लैड था टू फाइंड दैट द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू हिम, ये देखकर कि मैन का सच अ ह्यूमन साइड, ये ह्यूमन साइड है उसके प्रति। सो वुड योर्स, उसने उसके लिए बोला है, सो वुड योर्स, अगर मेरा फेस जो है वो 3/4 फुल में बेहतर नजर आएगा तो आपका भी नजर आता। मतलब उसके फेस के बारे में बात किया है, जनरल जनरल टॉक, जनरल सी टॉक है। ये क्या कॉल कर रही है क्या। अंशिका, अच्छा अंशिका इसमें है नहीं क्या। मैम मैं तो हूँ। ये एक और अंशिका का, एक जो न्यू अंशिका है वो है इस टाइम। मैम कोई और भी है क्या, मतलब मेरे अलावा, मतलब 10th में तो बस मैं ही हूँ ना। ये डाला तो है, मैम आई डिडंट गेट द लिंक फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, क्या न्यू स्टूडेंट है ये आधे घंटे का निकल गया इसका, क्या करूं मैं। ऐसा ना पढ़ाते समय हमको ध्यान नहीं रहता कौन न्यू है कौन ओल्ड है, जब लिस्ट बनाएंगे तब पता चलता है। ओके, अब ज्वाइन करेगी, इसका निकल गया, चलो रिकॉर्ड तो कर ही लिया है। और मैं आपके पास है ना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग उससे अपने आप से ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम में, जिस जिसको ज्वाइन होना हो।
9th में मैंने शेयर कर दिया, आपके में भी कर दूंगी। हाँ भाई, आगे। अनुप्रभा का हो गया। प्रियम, ये प्रियम कितने बहुत दिनों बाद आई है तुम आज। ये नहीं तो मैम मैं लेती हूँ क्लास। लेती डेली लेती हो? तुमसे ना क्वेश्चंस यस पुटअप मैम। करती हो, तुम्हारा तो मैं नजर से निकल गई, तुम तो मेरे क्वेश्चन तो पुटअप किया करो, इतने सारे बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। हालत खराब करके रखी हुई है मेरी। चलो बताओ, आगे लाइंस आती है तुमको? मैम कहाँ से? यहाँ से जहां से छोड़ा है। ही ट्विस्टेड माई फेस, किस वाली लाइन आई थी? यहाँ से, बट आई वॉज रॉन्ग। यहाँ से। बोलिए। प्रियम बेटा स्टार्ट करो। हम्म। मैम ये थोड़ी कंफ्यूजन में है लाइन। ओके, कोई नहीं। जिसको कम कंफ्यूजन है उससे पूछ लेते हैं, इसलिए तो हमने स्टार्ट किया है ये। काव्या तुम बताना। आज तो एक ही काव्या है ना, काव्या सक्सेना, बताओ। Okay, ma'am. He twisted my face as far as it would go and then stood looking at it. उसने मेरे फेस को ट्विस्ट किया जितना हो सकता था और फिर उस ट्विस्ट किए हुए फेस को देखने लगा कि क्या वो ठीक लग रहा है। He sighed again. उसने फिर से एक गहरी सांस छोड़ी। I don't like the head, he said. उसने बोला कि कंप्लेनिंग टोन में बोला कि तुम्हारा सिर अच्छा नहीं लग रहा है। Then he went back to the machine and took another look. फिर वो दोबारा से मशीन की ओर बढ़ा और उसमें फिर से मेरे लुक को देखा कि अब हाउ एम आई लुकिंग। ओपन द माउथ अ लिटिल, ही सेड। फिर उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया उसको और बोला कि थोड़ा सा अपने माउथ को ओपन कर लो। आई स्टार्टेड टू डू सो। नरेटर नरेटर ने वो किया जो उन्होंने कहा। क्लोज इट, ही एडेड क्विकली। उसने जल्दी से अपनी बात को रीडू किया और बोला कि नहीं नहीं, बंद ही रखो माउथ को और बंद रखो। देन ही लुक्ड अगेन। तो फिर जो फोटोग्राफर हैं उन्होंने अपने मशीन में से दोबारा उसका एक लुक देखा कि क्लोज करके माउथ कैसा लग रहा था। द ईयर्स आर बैड, ही सेड। फिर से वो एक कंप्लेन करते हुए कहता है कि तुम्हारे जो ईयर्स हैं दे आर नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, ड्रूप देम अ लिटिल मोर। तुम इन्हें थोड़ा और बेंड कर लो। थैंक यू। तो फिर उसने बोला थैंक यू करने के लिए। नाउ द आईज, रोल देम इन अंडर द लिड्स। नाउ अब अगर आईज की बात करें तो रोल देम इन अंडर द लिड्स, मतलब अपनी आंखें बंद करके उनको अपनी लिड्स के अंदर ही रोल करो। पुट द हैंड्स ऑन द नीज प्लीज। अपने जो हैंड्स हैं उनको नीज पर रख लो। एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड। और अपने जो फेस है उसको ऊपर की तरफ कर लो। तो उसने ये सारी एडजस्टमेंट्स हमारे नरेटर को बताए। या दैट्स बेटर, यस ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। नाउ जस्ट एक्सपैंड द लंग्स। जो अपने लंग्स हैं उनको एक्सपैंड कर लो। सो एंड हम्प द नेक। अब अपनी नेक को थोड़ा आउटवर्ड की तरफ जो है बेंड कर लो और आउटवर्ड और फॉरवर्ड बेंड कर लो। दैट्स इट, हाँ यही बहुत है। एंड जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द वेस्ट। अपनी जो वेस्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करो, थोड़ा पतला करो। हाँ, एंड ट्विस्ट द हिप टुवर्ड्स द एल्बो। और अपने जो अपने एल्बो तक अपने वेस्ट को या हिप के रीजन को ट्विस्ट करो। नाउ आई स्टिल डोंट क्वाइट लाइक द फेस। इतनी एडजस्टमेंट की बात बताने के बाद भी फोटोग्राफर ने फिर कंप्लेन की कि मुझे अभी भी तुम्हारा फेस, तुम्हारा लुक पसंद नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट अ ट्रिफल टू फुल। ये अभी भी बहुत इम्परफेक्शन से भरा हुआ है। इट इज स्लाइटली टू फुल विद मिस्टेक्स। बट फिर बट उन्होंने शुरू बट किया। बट के बाद उन्होंने बहुत कुछ बोला है। ठीक है। बट दिस 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 दिस। सोचो, तुम्हारे फेस के बारे में कोई व्यक्ति इतना सारा पहले तुम्हें पूरा फिट करके बिठा दिया, तो सोचेगा तो बहुत अच्छा फोटो, मतलब
अब हमारा फोटो अब खींचने ही वाला है। फिर वो पूरी तरीके से गए कि भाई अब भी क्या है, इट इज जस्ट अ ट्रिफल टू फुल। अब भी फुल जो मुझे चाहिए परफेक्शन, उसमें थोड़ा सा ट्रिफलिंग है, थोड़ा सा तो मिस्टेक है, कुछ तो कमी है। तो वही चल रहा है। हाँ अंशिका, जो न्यू है, तो एक तो तुम अपने नेम के साथ ना अपना सरनेम लगा देना इसमें, क्योंकि 2 अंशिका हो गई हैं। और दूसरा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ही है, जो भी न्यू है इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला फर्स्ट लिंक अभी मैं एंड करूंगी, सेकंड लिंक से ज्वाइन करेंगे फिर। और टाइम पे बैच स्टार्ट हो जाता है। अभी तो मैं बाहर थी इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, पूरा रेगुलर घर पर हूँ मैं। 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल आ जाइए 8 बजे, ठीक है। रीज्वाइन कीजिए आप। रिकॉर्डिंग में आधा मिनट लेगा, ये आधा मिनट बाद ज्वाइन कर लेना है ना, रिकॉर्ड हो रही है ये।